of the third edition of digital transformation. Recognition of Ladakh. He's invited to Lord Latmika NSM. To the Shri Jaman Singh Nandya ji. By DevConnect, the 12th edition of Digital Transformation Conclave is an initiative by iLog Media in collaboration with the Information Technology Department, UT of Ladakh as a host partner. On this occasion, we are honored to have the Honorable Lieutenant Governor, UT of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra sir, amongst us. Sir, I extend a very warm welcome to you on behalf. Be a game changer here, and we have moved much ahead in the work of a catalyst. Like power of digital world is reaching out to every nook and the biggest example is the stage out to every panchayat out here, every person who is sitting in the last mile, that is the last village. That this conclave, that is digital transformation conclave and awards, is being held in my hometown, that is in my home territory, that is Ladakh. And also, I think you are making a record because you are holding this conclave at the topmost place that you would have ever had. So that is very good. And I'm also glad that the participation is so extensive and wide. The digital technology is the way forward. If we do not progress in that, we'll be left behind, fall by the wayside. Lot of work has been done in our Union Territory Ladakh in this field, but much more remains to be done. And such conclave will certainly help in doing those undone work or required work. However, if I understand correctly, or if I understood correctly as to what the previous speaker spoke, the autonomy in IT, information technology, by India, sovereignty, the word he used, is yet to be achieved by us. I think this is very important. And the earlier we do, the better it is. The most important for any nation is the defense of the nation. And if the IT is not sovereign for a country, in a country, we cannot defend our country. Because today the technology of warfare is based on artificial intelligence and information technology. And if we are not sovereign in that, we cannot defend ourselves. And which is most important factor for all of you, those who are involved in information technology matter. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, he is very keen on that. Very keen that information technology wise, digital transformation wise, we should be the best in the world. I'll give an example. In 2017, I was governor in Arunachal Pradesh. Honorable Modi ji, he visited our state. And while he was moving to the venue of the public meeting, I was accompanying him in his vehicle. So he asked me, he said, Mishra ji, आप कैसे पेमेंट करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लिया दूध. तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ डेयरी है. But he had another question. He said, what about the fodder for the cattle? I said, sir, it comes from the agriculture department. Then he had another question. He said, what about medicine for the cattle? I said, it comes from the animal husbandry department. Then he said, suppose you have to put
a good string, decorative string of beads around the neck of the cattle, of the cow. How will you make payment? I said, sir, by check? He said, no, do it by Paytm. So, the man is so keen because he is genuinely interested, dedicated, all the time thinking about Bharat, 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 and he wants Bharat to go forward. So that is very important. कि किसी भी देश के लिए सीमा सुरक्षा या उसका सेफ गार्ड, उसका बॉर्डर गार्डिंग इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमेशा रहता है। और आज हम इस सीमा क्षेत्र में बैठ के ये महसूस कर सकते हैं, जितने भी बॉर्डर एरिया में जो हमारे मेन विलेजेस है, आप लोगों ने न्यूज़ में, मीडिया में हर रोज़ देखते होंगे, चुशुल जहाँ पे रिजंगला वार 1962 में इंडो सिनो वार हुआ था, डेमजोक हर वक्त जो है वहाँ पे एक टसल रहते हैं। उसी तरह यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर जो द्रास सेक्टर में जहाँ 99 में वार लड़े थे, आज ये सारा क्षेत्र जो है इसी बीते 3-4 साल में डिजिटली कनेक्ट हो चुका है। और केवल फ़ोन और इंटरनेट का ही नहीं, बल्कि डिजिटल लिटरेसी हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, या जितने भी इस डिजिटल के माध्यम से एक बॉर्डर पे रहने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि भाई इस देश में आपका भी इज्जत है, इस देश में डिजिटल राइट आपको भी मिलता है। हालांकि इस देश में पहले भी एक स्कीम होता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन स्कीम, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति को उसके हक का, उसका राइट का डिजिटल कनेक्टिविटी देना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। लेकिन ग्राउंड पे पहुंचने तक, मोदी जी के आने तक हम इंतजार करें। लेकिन आज इसी 4 साल में मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समेत, यहाँ के एडवाइज़र, यहाँ के जितने भी हमारे सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज, जितने भी ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, रूलिंग में, ओपोजिशन में, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा लद्दाख वासियों की ओर से कि आज पूरे लद्दाख वासी, मैं कह सकता हूँ कि 86% लद्दाख के लोग जो है आज डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं। बचे कुछ गांव हैं और उसको भी सरकार ने जो है ऑब्लिगेशन फंडिंग में से, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग में से जो रिसेंटली स्कीम नया बना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4G सिचुएशन स्कीम में जो है सारे सैंक्शन है, और आने वाले साल के जो वर्किंग सीजन की शुरू में वो सारा काम होना है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस कॉन्क्लेव में जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी चर्चाएं होंगे, डिलिब्रेशन होंगे, उसका पहला बेनिफिशियरी जो है लद्दाख के आम नागरिक होंगे। और यहाँ जो सीमा पे तैनात हमारे जितने भी सोल्जर्स होंगे, चाहे वो ITBP को, इंडियन आर्मी के हो, सभी लोगों के उसका बेनिफिट मिले, ये हम आप सबसे pride. So yes, we have to move forward in this is the information age, and there is a book written by Yuval Noah Harari. I mean, most of you must have read that this is an age of information. That's called Homo Deus. So Homo Deus. That he wrote a book on Homo sapiens, and now he has written a book, Homo Deus. He sees that in future, with the technology, a man might become, he has a chance of becoming immortal. Those people who can afford it. So the Homo can become Deus, means the God. So yes, this is an information age, and we have to catch up. We have very strong competition. Our neighbor, the big neighbor, we have a strong competition, and they are very much ahead in the AI. In fact, that is their strength. We have countries like Taiwan who are very, very advanced in the what you call the super chips or those technologies. So we as a nation have to move towards, and we have to realize the dream of our Prime Minister. And we have to set up this data center. We have to even we are in a big way. We want to utilize the telemedicine here, because as I mentioned, it's a very vast area with very sparsely populated ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया है, डिजिटल की तो हर जगह बात हो रही है, जिस तरह से कनेक्ट करना है, और लद्दाख के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इससे
क्या आम जनता के लिए किस तरह से आप इसको डिस्पोजल में लाएंगे, क्योंकि आम जनता को जानने की बहुत आवश्यकता है इस टाइम? देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम एक डिजिटल एरा में चल रहे हैं। आप जो काम करते हैं, इवन मीडिया से लेकर गवर्नमेंट वर्क, प्राइवेट वर्क, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द नेक्स्ट इन थिंग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि भारत को हमने एक विकसित भारत बनाना है, विकसित देश बनाना है। और एक इसके उपलक्ष्य में एक हमने यहाँ पे एक बहुत नोवल इनिशिएटिव लिया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इट्स ए हिस्ट्री इन द मेकिंग। 11,000 प्लस फीट पे हमने नेशनल स्केल का, हाईएस्ट स्केल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल कनक्लेव ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का एक विज़न रियलाइज़ हो रहा है। हमारे पास बहुत जगहों से, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष से 20 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से ऑफिसर्स आए हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, और एट द सेम टाइम टॉप कॉरपोरेट्स का एक यहाँ पे शिरकत है भरपूर तरीके से। और वो भी सबसे बड़ी बात, एक ये तो फर्स्ट टाइम हम कर ही रहे हैं, ये मेड इन इवेंट है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि ऐसे मौसम में, ऑटम का मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं, अब सर्दियों का ऑनसेट हो गया है। अब हम नवंबर के लास्ट फेज़ में चल रहे हैं और दिसंबर आने वाला है। तो ऑर्गेनाइजर्स भी थोड़े चिंतित थे कि कैसे होगा, बट हमने उनको बोला हो जाएगा। और आज आपके सामने है, हमारे पास डेलीगेट्स पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं, इवन आई थिंक इंटरनेशनल ग्रुप्स आर आल्सो हेयर। तो ये हमारे लोगों के लिए इस तरह से बेनिफिशियल होगा कि लद्दाख को प्रोजेक्शन मिलेगी जो मच नीडेड है। नेचुरल ब्यूटी में हमारे माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, ये तो एक अलग दर्शाते हैं, पर उसके साथ टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ना है, वो ये हमारा जो आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये उसके थ्रू रियलाइज़ हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ का आज डायरेक्ट लिंकेज है टेक्नोलॉजी से। जैसे मैं आज इनॉग्रल एड्रेस में बता रहा था कि यहाँ पे अब देखिए टूरिस्ट आते हैं, उनको फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स या जो भी नॉमिनल कॉस्ट पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स चाहिए। कितने लोगों के प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, उनको पता नहीं होता। यहाँ पे हमारे JNK और लद्दाख का जो आपको पता है सिक्योरिटी सिनेरियो की वजह से, वी आर वेरी नियर टू द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड ऑल, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ लिमिटेशन है, वी डोंट यूज़ प्रीपेड कार्ड्स। तो उनको अब कैसे कनेक्ट होना है अपनी फैमिली से? अगर हमारी मार्केट्स में, अगर हमारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पे पूरे कारगिल से लेकर जो हमारे दूर दराज जैसे नुब्रा हो गया या पेंगोंग हो गया, या जहाँ भी लोगों को जाने का मन है, तो वहाँ पे अगर हम उनको हॉटस्पॉट दे दें तो वो डायरेक्टली वीडियो कॉल अपनी फैमिली से कर सकते हैं, अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं कि हम किस जन्नत में आए हैं। तो टेक्नोलॉजी का रोल तो रहता ही रहता है। वैसे ही आपने देखा हमारे यहाँ पे ऑफिस का पुरजोर तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सब फाइल्स जो हैं डिस्पोज होता है, अब तो कहीं पे कोई पेंडेंसी नहीं रहता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज हमारा डेटा सेंटर बड़ी तरह से बनकर आ रहा है। हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यहाँ पे आया है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लाएंगे। पुलिस आजकल टोटली पुलिसिंग जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से हमारे पास एक्सपर्ट्स पूरे भारतवर्ष से आए हैं जो अपने अपने व्यूज़ हमारे सामने रख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लद्दाख के निवासियों के लिए, जिसमें उनको पता चल रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि 5G अच्छी तरह से चल रहा है, जो मेजर एरियाज़ हैं अब हम उसको भी एक्सपैंड करेंगे। 4G तो ऑलरेडी हमारे हर जगह दूर दराज इलाकों में पहुंच गया है। माननीय सांसद भी बता रहे थे कि सड़कें बाद में पहुंच रही हैं लेकिन 4G पहले पहुंच गया है। तो ये टेक्नोलॉजी करती है, कनेक्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे विजनरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जैसे बताया, वो डिफेंस को लेके बहुत सजग रहते हैं। और अभी पीछे हमारी कुछ मीटिंग्स में जैसे उन्होंने बताया, गलवान तक हमें टावर्स इरेक्ट करने हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों में हमें लास्ट माइल तक आखिरी आदमी को कनेक्ट करना है। और ऑनलाइन सर्विसेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हम प्रचलन करवाना चाहते हैं, जैसे मी सेवा अभी चल रही है CDAC की, और इस तरह से तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। ये कनेक्ट, ये एक फाउंडेशन बनती है।
ऐसा कभी भी कोई कार्यक्रम हो, इस स्केल का कार्यक्रम हो, जो पहली बार लद्दाख की हिस्ट्री में हमने करवाया यूटी में, तो इसका श्रेय हमारे माननीय एलजी साहब, एडवाइज़र साहब और पूरी टीम, मेरे जितने सीनियर्स, सेक्रेटरीज, साथी, संगी हैं, सबका रोल रहा है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। और ऑब्वियसली जो आई लॉन्च मीडिया है, जो कॉरपोरेट बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, सब लोग आए यहाँ पे इसको सुपर सक्सेस बनाने में। आप देख ही रहे हैं, और आज ये पूरा दिन चलेगा, डेलिब्रेशंस चलेंगी, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस चलेंगी, सब लोग अपने जो लेटेस्ट आईटी इनिशिएटिव्स हैं वो बताएंगे। कुछ ग्रुप्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अपने नेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स, जैसे कोई डेटा सेंटर को लेकर है, कोई क्लाउड को लेकर है, कोई कुछ है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। और हम लद्दाख में बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, यही चीज़ें फ्यूचर हैं आने वाले टाइम में। अब हमने टेक्नोलॉजी तो ले आए हैं, अब हमें इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर ये देखना है कि टेक्नोलॉजी के बाद कोई फ़र्क पड़ा है क्या, हमारे लोगों की ज़िंदगियां आसान हुई हैं, लाइफ ईज़ आउट हुई है। अब सर्दियों में दफ्तरों में जाकर -20-30 में जाना फिजिबल नहीं है। अब घर में अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से लोग डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन को भर सकते हैं, वहीं से एग्ज़ाम कोई लिख सकते हैं, वहीं से रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सुविधा बढ़ाई लोगों की, ये टेक्नोलॉजी का ये रोल रहता है, लोगों की जीवन आसान हो जाए, जीवन वापन आसान हो जाए। जिस तरह से डिजिटल ग्रोथ की हम बात करते हैं वो तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं, और साथ में ही डिजिटल स्कैम्स भी बहुत होते हैं। राइट। तो उसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, क्योंकि अगर लद्दाख की बात करें, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्मार्टफोन्स उनके पास नहीं है, तो एक तरह से एकदम से इंट्रोड्यूस करना भी काफ़ी मुश्किल रहेगा उनके लिए। तो बहुत बारी लद्दाख में ये भी देखा है और दूसरे जगहों में कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो उसको किस तरह देखा जाएगा सर? उसको देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं उसमें आपको ये थोड़ा सा इसमें रोशनी डालना चाहूँगा कि आज के समय में स्कैम्स तो साथ साथ ही हैं। आप कहीं पे भी कोई काम करते हैं तो पहले ही उसके लिए कुछ क्रिमिनल जो माइंडसेट वाले हैं वो तैयार रहते हैं गड़बड़ करने के लिए, पर उसी को हम घटाने के लिए और लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए, यानी कि कैसे उनका ज्ञान इस फील्ड में बढ़े, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं शेयर करूंगा कि मैंने बैंकर्स की ड्यूटी लगाई है। जो भी मेरे पास बड़े बड़े बैंकर्स आते हैं, उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, और ये उनका दायित्व भी बनता है कि फिनेंशियल स्कैम्स कम से कम हो। उसके लिए हमने अपनी पुलिस को भी इक्विप किया है, उनको अवेयर बनाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े बैनर्स के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, या सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन्स चलाए जाएं और लोगों को बताया जाए, कुछ वीडियोस डाले जाते हैं कि भैया ये OTP अपना शेयर मत कीजिएगा, इस तरह की चीज़ें। मतलब देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी का एडवेंट तो रोका नहीं जा सकता, वो तो अपने समय पे आनी ही आनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको काउंटर करना पड़ेगा। जैसे हमारे साइबर क्राइम सेल्स बन चुके हैं, तो उसमें हम तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर अगर कोई जल्दी ही कोई स्कैम का पता चल जाए तो हम उसी वक्त उसको डिटेक्ट करके उसका रेक्टिफिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये कहकर आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हमने एक डिजिटल इंडिया और उसको अगले लेवल पर लेकर जाना है, तो वो आज आप देखते हैं कि मतलब बहुत हम भारत को एक विकसित देश के रूप में आगे ले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अब टेक्नोलॉजी को साथ लेकर ही चलना है, और जो स्कैमस्टर्स हैं या जो आप जिनको बोलते हैं कि हैकर्स हैं, उनके एंटी हैकिंग सिस्टम्स और ज़्यादा रोबस्ट बनाने हैं। तभी हम बताते हैं कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी, जैसे हम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, कहीं पे कोई साइबर अटैक हो, कुछ हो, उसको काउंटर करने के लिए भी हमें साथ साथ पुरजोर स्टेप्स लेने हैं। जैसे हम डेटा सेंटर ला रहे हैं तो हमें एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी लाना है, साथ में हमें नेटवर्क पे हैं तो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एक लाना है, जहाँ पे नॉक, सॉक और ये चीज़ें साइबर क्राइम को काउंटर करने के जो प्लग्स हैं, जैसे हमें जगह जगह पे फायर वॉल्स लगानी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि इंक्रिप्शन हो, तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को हम अपने तरीके से प्रिजर्व भी रख सकते हैं। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये चीज़ों के लिए हमें सजग रहना है, और लद्दाख के लोगों को मिनिमम इन चीज़ों से दुश्वारियाँ हों वो इंश्योर करना है, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आए हैं, वो कुछ सिक्योरिटी सोल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं, वो आज यहाँ पे हमें बताकर जाएंगे कि कैसे सिक्योरिटी सोल्यूशंस को इन प्लेस करना है, कैसे ये लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी, ये हम तक महदूद नहीं रहेंगी। जो यहाँ ना भी आ सके लोग, हमारे सिटीजन्स, तो उनको हम थ्रू सोशल मीडिया,
थ्रू बैनर्स, थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू FM, डिफरेंट चैनल्स माध्यम से उन तक पहुंचेंगे और उनको इन चीज़ों को काउंटर करने के मैकेनिज़म्स के लिए आगाह कराएंगे और कैसे इससे बचना है उसके लिए हम साथ के साथ कैंपेन्स चलाते रहेंगे।